वेलकम बैक क्लास 12। बेटा लास्ट टॉपिक पे हम लोग ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा था। आज हम बेटा उससे रिलेटेड टूल्स कंडीशंस पढ़ेंगे। इफ थ्री वेक्टर वेक्टर ए बी सी आर को प्लानर देन बेटा देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो। दिस इज द थ्योरम। नाउ बेटा प्रूफ ऑफ थ्योरम। तो व्हाट इज द अकॉर्डिंग टू थ्योरम? if three vector a b c are co-planar if and only if बेटा वो तभी हो सकता है when a dot b cross c equal to 0। तो first thing, if vector a b and vector c are co-planar and vector b is parallel to vector c। if vector b is parallel to vector c, if vector b is parallel to vector c, then vector b cross vector c will be 0। अगर बेटा b और c के भी पैरेलल है then b क्रॉस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन उस केस में बेटा a डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इज आल्सो इक्वल टू 0 वेक्टर, यानी कि बेटा इसका डॉट प्रोडक्ट दिस इज 0 वेक्टर। और बेटा अगर ये 0 वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट विथ a दिस इज आल्सो 0। नाउ दिस इज द फर्स्ट केस। इन द सेकंड केस, इफ वेक्टर a b and c are coplanar but vector b is not parallel to vector c, but vector b and vector c are perpendicular to vector a। तो बेटा if vector b and c are not parallel, तो बेटा पैरेलल नहीं है बट परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो a का b के साथ डॉट प्रोडक्ट देन दैट इज आल्सो 0 और a का c के साथ डॉट प्रोडक्ट दैट इज आल्सो 0। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? दिस मींस वेक्टर a डॉट वेक्टर b वेक्टर क्रॉस वेक्टर c is also equal to 0। This is the condition for the coplanar of for the three vectors। Now for the questions। अब बेटा क्वेश्चंस के देखते हैं। Find बेटा find vector a cross vector a dot vector b cross vector c, and here vector a is equal to beta 2i plus j and plus 3k, and vector b equal to minus I and plus 2j and plus k cap, and vector c equal to 3i plus j and plus 2k। Here we have to find the scalar triple product beta। So first thing we have to find cross product between b and c। तो बेटा वेक्टर b cross vector c, yeah you can also solve it by taking vector a dot vector b cross vector c। बेटा लास्ट में बताया था we can write it in the determinant form। first thing, first write down the coefficient of a 2 1 3, then b minus 1 2 and बेटा 1, and ये क्या बेटा 3 1 2। बेटा लास्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ जब बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताया था उसमें बताया था इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ बेटा एक्सपेंशन ऑफ दिस वन, तो बेटा बाय टेकिंग एक्सपेंशन विथ r1, तो बेटा 2 when we take 2 then take these two row and column, this is 2 1 2, then second one beta minus, then for the minus this is minus 1 3 1 2, then for the 3 plus 3, then for the 3 we take this element minus 1 3 2 and 1। what is the expansion for this beta? 2 2 ja 4 minus 1 4 minus 1, this is minus 1 beta, this is minus 2
and minus 3 and plus 3. And what is this? This is beta minus 1 and beta minus 6. Then beta 4 minus 1 3, 3 to just 6, and this is minus 5 and minus beta plus 5. And what is this? Then this is minus 1 and minus 6. This is minus 7 minus 21. Now beta what is this? 6 plus 5, 6 plus 5 11 minus remaining is minus 10. The scalar triple product of these three vector will be minus 10. The value in स्केलर बेटा, स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए इसका नाम बेटा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. देन बेटा अभी कोप्लानरिटी के बारे में बताया था. देन सेकंड क्वेश्चन, शो दैट दिस वेक्टर आर कोप्लानर. तो दिस इज वेक्टर ए गिवन है बेटा I minus 2j and plus 3k, and vector B is minus 2I and plus 3j and minus 4k, and vector C equal to I minus 3j and 5k cat. So beta, for if these three vectors are coplanar, then the scalar triple product of this vector must be 0. तो अगर ये 0 होना चाहिए, अगर हम 0 शो कर दें हैंड दीज आर द कोप्लानर, हमें प्रूफ में यही करना है बेटा. तो बेटा देन बेटा बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देन बेटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी. तो बेटा वी कैन राइट इट इन द डिटरमिनेंट फॉर्म, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं. तो दिस इज बेटा 1 minus 2 3 minus 2 3 and minus 4, and beta this is 1 minus 3 and 5 by expanding it from the R1. Then beta what is it with respect to 1? If we take t with respect to R1, then what is the smaller matrix? Minus 4 and minus 3 and 5. This is in minus, and we also have to take minus. Then minus beta plus 2. अब माइनस है और माइनस लेना भी था, तो विथ रिस्पेक्ट टू इस एलिमेंट की बेटा क्या हो जाएगा? माइनस 2 1 minus 4 and 5. नाउ फॉर द 3 के लिए लेते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? जैसे माइनस 2 1 and 3 and minus 3. देन बेटा क्या हो जाएगा? 1 3 5 जा बेटा 15. और ये क्या हुआ बेटा? माइनस माइनस प्लस, और बेटा माइनस करना, दिस इज माइनस का 12 एंड दिस इज प्लस 2 टाइम्स बेटा 5 2 जा 10 minus 10. Then beta plus minus minus 4, and we have to take minus, so minus minus plus 4. Then beta plus 3. Then this is minus minus plus 6 minus 3. Now beta what is this? This is 15 minus 12 3 in 1 jar 3, and this is beta minus 6 into 12 minus 12, and beta ये क्या जाएगा? 6 minus 3 3 3 3 जा 9, then beta plus 9. तो 3 plus 9 12 minus 12 equal to 0. Hence then beta hence A vector A, B and C are coplanar beta. Now next question beta, find the value of lambda if vector A, B, C are coplanar. So if vector A, vector B and vector C are coplanar, then find the value of lambda. So here vector A is given here beta I plus 3j and plus k, and vector B equal to 2I minus j minus k, and vector C is equal to lambda I
plus 7j and plus 3k. Now beta, here we have to find the value of this lambda, and according to question a, b, c are coplanar. But if a, b, c are coplanar, then vector a dot vector b cross vector c is equal to 0, or you can write it determinant of this value is 0. When determinant means beta 1 3 1, and this is 2 minus 1 minus 1, this is lambda, and beta plus 7 and 3 equal to 0, and we have to find lambda, और यहाँ पे हमें lambda find करना है. Again by expanding it with r1, बेटा r1 से expand करेंगे तो 1 times, तो ये क्या हो जाएगा बेटा -1 7 -1 3 and -3 बेटा -3 के रिस्पेक्ट में लेंगे, देन 2 lambda -1 3, then with respect to 1 लेंगे बेटा, with respect to 2 lambda -1 and 7 equal to 0. Now बेटा what is this? This is beta -3 and -7 plus 7 beta, and this is -3 times what is this beta 6 and beta minus lambda, and then minus lambda, and we have to do minus, और minus करना भी है. This is minus minus plus, and plus 1 times ये beta 14, और this is minus lambda and again minus, so this is plus lambda equal to 0. Now beta what is this? Plus 4 beta, by multiplying with -3 minus 18 and beta -3 lambda, again by multiplying, then beta ये क्या हो गया plus 14 and plus lambda is equal to 0. Then beta 4 and minus 18, so what is this -14 plus 14 cancel out. What is remaining in beta -2 lambda equal to 0, then lambda will be 0. So according to question, for what value of lambda these three vectors are coplanar? For lambda equal to 0, these vectors are coplanar. अब बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. एंड बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, then so that if vector a plus b, vector b plus c, then vector c plus a is equal to 2 times vector a, vector b and vector c. इसी में बेटा पूछा गया है और if vector a plus vector b, बेटा पहले इस पार्ट को देख लेते हैं. देन बेटा अकॉर्डिंग टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा, तो दिस इज a प्लस b, वेक्टर a प्लस b डॉट, देन बेटा दिस इज वेक्टर b प्लस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर c प्लस वेक्टर a, then beta this is vector a plus vector b. Now beta by taking cross product, then beta by taking cross product, this is vector b cross vector c, vector b cross vector c. अब बेटा इसके साथ लेंगे प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, देन बेटा क्या हुआ प्लस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर c, देन बेटा क्या हुआ प्लस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a. देन बेटा अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट टू इटसेल्फ इज 0, तो अगर खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो ये तो 0 हो गया. देन नाउ वी टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a प्लस b विद 4. अब बेटा a को पिक करते हैं, तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो a का बेटा इसके साथ हुआ तो बेटा ये क्या हो वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, देन a का इसके साथ हुआ, देन ये क्या हो बेटा प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a,
देन बेटा एक इसके साथ होगा, देन क्या हो जाएगा बेटा, दिस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। सेम थिंग बेटा डॉट प्रोडक्ट विद बी, बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस बी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, एंड बेटा अगेन बी डॉट दिस वन, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, देन अगेन बेटा डॉट प्रोडक्ट विद दिस वन, ये क्या हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज वेक्टर ए बी सी, ये क्या है बेटा प्लस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए, देन बेटा व्हाट इज दिस, दिस इज वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर ए, देन दिस इज वेक्टर बी वेक्टर सी, then this is vector b and vector a, then what is this is plus vector b vector c and vector a। now beta according to property of scalar triple product, बट हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि if the vector is same in the scalar any two vector is same in the scalar triple product, अगर बेटा इसमें कोई भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर सेम है, इफ टू वेक्टर्स आर सेम इन ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देन द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी 0। तो इसमें बेटा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 हो गया बेटा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, देखो बेटा यहाँ डबल बी आ रहा, ये 0 नहीं हुआ, देन क्या बचा हमारा बेटा, दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, प्लस ये क्या बचा बेटा वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए। बेटा मैंने बताया था साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं इसको, तो बेटा साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, साइक्लिक ऑर्डर में बेटा चेंज करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, देन वी कैन राइट इट 2 टाइम्स वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। बेटा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी प्लस सी and vector c plus a is coplanar then prove that a b c are coplanar। तो बेटा अगर ये कोप्लानर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होगा बेटा 0 के, तो इक्वल टू 0 लिख लेंगे, देन दिस विल आल्सो इक्वल टू 0 लिख लेंगे, तो ये बेटा यहाँ पे 0 तो हो ही गया था। देन बेटा सेम थिंग ये सारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0 के बेटा, देन बेटा ये सारे वैल्यू तो 0 लिख दिया था, यानी कि इन दोनों का सम भी 0 होगा। अब बेटा इन दोनों का सम भी 0 होगा, इसका 2 टाइम्स ऑफ दिस आल्सो इक्वल टू 0, अगर ये बेटा 0 के इक्वल है हेंस ए बी सी या कोप्लानर। बेटा इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करें।